Hello everyone, this is Dr. Jyoti D. Gulwani with Banking, Insurance and Financial Services. As we have already started with chapter number 2, e-banking. Now today we are going to start with the new topic, that is core banking. In last video we have understand the meaning and features of internet banking. Now we will go with the core banking. So let us understand what is core banking. See, as all the bank branches work with a centralized server or data center. Transactions are updated regularly and are accessible to the customers in real time. Core banking systems are built to empower existing and probable customers with greater freedom of their account transaction. Customers also appreciate the enhanced transparency in banking thanks to core banking solution. Suppose if you want to understand in our own simple language what is core banking. The core banking, that means a person of a specified bank can work differently with the different places because उसका सर्वर एक ही होता है. See, as it is said over here, as all the bank branches work with a centralized server data center. That means what? सपोज इफ़ यू आर हैविंग योर बैंक अकाउंट इन SBI बैंक, आपका बैंक अकाउंट है वो SBI में है, तो उसका जो सर्वर होता है वो एक ही होता है, मेन सर्वर, जिसके ऊपर पूरा SBI काम करता है. अभी जो मेन सर्वर होता है इन द मेन ब्रांच, वो ही सारी एक्टिविटी, सारे ऑपरेशंस हैंडल करता है, सिर्फ सिस्टम अलग अलग होती है. Suppose if you are having SBI bank account in Vapi. Now if you want to deposit cash at Navrangpura, Ahmedabad, take for example, you want to deposit cash over there, then you can deposit cash also in that Navrangpura branch of Ahmedabad also. आपके अकाउंट में ही पैसा जमा होगा क्योंकि सर्वर एक ही है. आपका अकाउंट नंबर आप डालोगे तो अहमदाबाद की जो ब्रांच है SBI की, वहाँ से भी आपका पैसा डिपॉजिट हो जाता है. इन द सेम वे सपोज इफ़ यू आर डूइंग पेमेंट इन बिग बाज़ार थ्रू डेबिट कार्ड, आप अगर बिग बाज़ार में जा रहे हो, वहाँ से अगर आप आपका पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका पेमेंट हो जाता है. वाई? अगेन इट इज़ वर्किंग विद अ सिंगल सर्वर ओनली. इफ़ यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM, सपोज फ्रॉम ICICI बैंक, then too your money is withdrawal from ICICI बैंक ATM also, क्योंकि अकाउंट आपका ही डलता है, सर्वर एक ही है. तो कोर बैंकिंग इज व्हाट वेयर all the bank branches are working with the centralized server data and you can do too much transaction with the help of your account only. आपके अकाउंट से ही आप वहाँ पे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन कर सकते हो. दैट्स वाई सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोला जाता है कि आपका अकाउंट नंबर किसी को देना नहीं है. And as it is said over here, transactions are updated regularly and are accessible to the customers in real time. Whatever transaction you do, आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाते हैं. और आपका जो पासबुक होता है, अभी तो एप्लीकेशन में भी पासबुक अवेलेबल है, तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर अपडेटेड रेगुलरली एंड इट इज़ अपडेटेड टू द कस्टमर ऑन राइट टाइम. आपको आपके टाइम पे वो मिल ही जाते हैं. Then core banking system are built to empower existing probable customer with greater freedom to their account transaction. अब see, if we talk about the traditional scenario, traditional में क्या होता था, आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ता था पैसे उठाने के लिए, जमा करने के लिए. फिर ट्रेडिशनली ऐसा भी होता था कि आपका बैंक है, वहीं से आपके पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं. तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? It empowers existing probable customer with greater freedom. आपको ज़्यादा फ्रीडम देते हैं. आप कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी बैंक में से कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं तो SBI का ही ब्रांच होना चाहिए, मतलब आपका ही ब्रांच होना, बैंक होना चाहिए. SBI में पैसा जमा करना है तो SBI में ही जाना है. थ्रू ICICI यू कैन नॉट डिपॉजिट योर मनी, माइंड वेल, दिस इज़ नॉट योर कोर बैंकिंग. यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ATM.
आपका भले ही अकाउंट SBI में है, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ATM ब्रांच। आप SBI में से भी विड्रॉ कर सकते हो, ICICI में से भी कर सकते हो, HDFC में भी कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी बैंक ATM, but mind well, whenever there is a thing of deposit, it should be done into the same bank branch। मतलब SBI की ही ब्रांच होनी चाहिए, वहीं से आपको पैसा पेमेंट करना है। In the same way, if you are doing payment through mobile phone, then too it is possible. If you are doing payment of any expenses which is done by you, it is also possible. So see, all these facilities are covered under the core banking system only. So it empowers existing probable customer with the greater freedom of their account transaction। आपको ज़्यादा फ्रीडम मिला है कि आप एक जगह पे बैठ के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो with the help of your mobile phone also। Customers also appreciate the enhanced transparency in banking thanks to the core banking solution। जो कस्टमर हैं उन लोगों को भी अभी ट्रांजैक्शन करना इजी पड़ता है और अभी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है टू ओपन द बैंक अकाउंट। वाई? बिकॉज टू मैनी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल in the banks now and कस्टमर कैन यूज़ दैट फैसिलिटीज़ ऑल्सो। पहले तो क्या होता था, आपको किसी को कैश देना है तो यू हैव टू गो विद दैट पर्टिकुलर कैश, कहीं पे चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। नाउ आर डेज विद द हेल्प ऑफ ATM, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग विच वी हैव लर्न इन लास्ट वीडियो, तो उसकी हेल्प से आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिंगल थिंग यू आर डूइंग योर transaction। So customers are also happy, they are also appreciating the services of the banks, but which comes under the heading of core banking only। Then core banking provides efficient support for deposit collection and loan disbursement system। CBS, that is core banking system, brings a level of standardization to process which makes them valuable। Core banking not only brings down operational cost considerably but also ensures lesser manpower requirement for execution। That is, core banking provides efficient support for deposit collection and loan disbursement system। जल्दी से आपकी लोन वहाँ पे आपको मिल भी जाती है, और अगर उनको कलेक्ट करना है मतलब थ्रू योर अकाउंट, आपके अकाउंट में से जो डायरेक्टली पैसे कटते हैं ना, आपको हर बार चेक डालने नहीं जाना पड़ता है। वॉट एवर इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, इट इज़ कटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी योर बैंक अकाउंट। तो दिस इज़ अ सिस्टम विच कम्स अंडर द कोर बैंकिंग ओनली। So CBS, that is core banking, brings a level of standardization। एक स्टैंडर्ड है, वहाँ पे वैल्यू है, एंड एज वेल एज इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट। उसको चलाने के लिए जो खर्चा लगता है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन पूरे ट्रांजेक्शन पॉसिबल होते हैं। तो यू कैन से दैट पेपर वर्क कम हो गया है, तो आपके खर्चे भी हो गए हैं कम, एज वेल एज विद द लेसर मैन पावर योर एक्टिविटीज़ कैन बी डन इफेक्टिवली। आपका मैन पावर भी वहाँ पे चाहिए कम, तो उसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन है वो जल्दी से हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट अ बेसिक रिलेटेड टू कोर बैंकिंग। नाउ नेक्स्ट वी विल गो विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस इंटरनेट और कोर बैंकिंग। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो हम कैसे दे सकते हैं, तो लेट अस गो विद द डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड कोर बैंकिंग। Number one, under that presence, see, bank exists physically for serving the customer। If we are talking about the traditional period, तो traditionally क्या होता था, फिज़िकली कस्टमर्स को वहाँ पे जाना पड़ता था, तभी ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल होते थे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरनेट बैंक्स, दैन इंटरनेट बैंक्स डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस एज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन ओनली। आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एज वी हैव डिस्कस्ड ई बैंकिंग फीचर्स ऑल्सो। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन कंडक्ट योर ट्रांजेक्शन। दैन नेक्स्ट इज टाइम। It consumes a lot of time as customers have to carry out bank transaction like checking bank balances, transferring money from one account to another account. While if we talk about the internet, it doesn't consume time.
as customer don't have to visit bank to check balances to transfer money from one account to another account. Customers can access their account readily from anywhere with a computer and internet access. सी क्या होता है, पहले के टाइम का अगर बात करें ट्रेडिशनल बैंकिंग में, तो आपको पहले ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका बैलेंस चेक करना पड़ता था कि भाई इसमें कितने पैसे हैं, फिर वहाँ पे फॉर्म भर के देना पड़ता था फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी, तभी जाके आपका पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. बट नाउ डेज इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरनेट बैंकिंग, आप अगर आपकी एप्लीकेशन पे मोबाइल में, अभी तो कंप्यूटर भी नहीं, मोबाइल में अगर आप क्लिक करो आपकी एप्लीकेशन में एंड इफ़ यू व्यू योर बैलेंस, तो सीधा आपको आपका बैलेंस दिखाई देगा एंड डायरेक्टली देन यू कैन ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट विद इन अ क्लिक ऑफ योर within a click of your message या तो within a click of your mobile phone. तो directly you can transfer money from one account to another account with the help of internet and core banking. So very easy with the internet banking. Then accessibility. People have to visit banks only during the working hours. See, working hours of bank is 9 to 4. That means if you have to do any transaction, कुछ भी करना है, पैसा विड्रॉ करना है, जमा करना है, या तो कोई भी लोन लेना है, देना है, whatever access you want to do, it must be done within the working hours only. But it is not the case of internet banking. See, you can read it clearly. Internet banking is available at any time and it provides 24-hour access. आप रात को 2 बजे भी उठ के इंटरनेट चालू करके अगर आपका ट्रांजैक्शन करना चाहो तो you can do it easily. So in traditional banking accessibility is more, while in internet banking accessibility is 24 hours only. Here accessibility is limited, that is from 9 to 4 working hours only, while in internet banking it provides accessibility for 24 hours. Then next is security. ट्रेडिशनल बैंकिंग डज नॉट एनकाउंटर ई सिक्योरिटी थ्रेट्स. अब से ई सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है ये आप सबको पता है, दैट इज़ जो हैकिंग हो जाता है राइट नाउ. सो इन ट्रेडिशनल बैंकिंग देयर इज़ अ नो फियर ऑफ योर हैकिंग. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो टेबल के थ्रू ही होते हैं, तो दैट इज़ अ नो ई सिक्योरिटी थ्रेट्स. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन बैंकिंग देन देर आर थ्रेट्स ऑफ दी हैकिंग. और अभी हम बहुत सुनते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, आपके अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हो गया या तो कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हुए. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग. नाउ सी, बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग डेटा, it is only we who are allowing to make the frauds. Mind well, banks are not allowing to make the frauds, but because of certain codes, because of certain OTP, because of certain messages, we are allowing the people to make fraud with us. So internet banking through frauds are happened, but banks are not allowing internet frauds. इतना याद रहे, ठीक है. So next is financial control. Customers who often travel abroad cannot pay close attention and control to their finance. जो लोग बाहर जाते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करें तो those who are going outside the कंट्री, तो वो लोग वहाँ पे बैठ के ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हैं इन ट्रेडिशनल बैंकिंग. बट इफ़ यू आर यूजिंग योर इंटरनेट और कोर बैंकिंग देन वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग, वेर एवर यू गो, डायरेक्टली यू कैन हैंडल योर ट्रांजेक्शन. तो इन ट्रेडिशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल, वाइल इन इंटरनेट बैंकिंग इट इज़ पॉसिबल. देन कस्टमर्स हैव टू स्पेंड मनी फॉर विजिटिंग ब्रांच. अब सी, बार बार अगर आपको कुछ भी काम है, बार बार अगर आपको ब्रांच पे आना है तो इट बिकम्स एक्सपेंसिव. सपोज़ आप टेक फॉर एग्जांपल, आप पार्डी में रहते हो, आपका बैंक अगर वापी में है फॉर एग्जांपल, तो फॉर डूइंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू स्पेंड मनी टू कम फ्रॉम पार्डी टू वापी. तो आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरनेट बैंकिंग दैन कस्टमर डोंट हैव टू स्पेंड मनी for visiting bank. They can avoid bank charges that may be charged for certain tele transaction or when they pay certain bills directly from their account to the other account. It helps to save money on postal charges. अब see,
जैसे आपको बोला एक सिटी से दूसरे सिटी में आने के लिए पैसा लगता है, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। डायरेक्टली आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कोई भी बिल पे करने हो आप कर सकते हो, बट वन थिंग इज़ हियर दैट यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेस चार्ज बाय बैंक। आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो थोड़े चार्जेस लगते हैं। एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, चार्जेस लाइक आपने एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया तो मिनिमम चार्ज ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज 1.77 पैसे, दैट इज़ 1 रुपीज़ 77 पैसे। तो इतना चार्ज वो लेते हैं विच इज़ नेग्लिजिबल, वी कैन से दैट। सो इट इज़ लेसर इन कंपेरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग। Then next is cost. The cost incurred by traditional banks includes a lot of operating and fixed cost, while such costs are eliminated as the banks do not have physical presence. अब से ट्रेडिशनली अगर कोई भी काम करते हैं तो ट्रेडिशनली क्या होता था, बहुत सारे लोग अपॉइंट करने पड़ते थे टू डू दी ऑपरेशंस, दैट इज़ टू डू द एक्टिविटीज़, एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जितने ज़्यादा लोग उतने उनको बैठने के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा देनी है, टेबल्स, कंप्यूटर, फैन, एसी, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू दैम। सो in traditional banking it incurs the expenses. Which expenses? You can see over here, operational and fixed expenses, while here physical presence is very lesser in comparison of the traditional banking, so it is lesser costlier than customer service. In traditional banking, the employees and clerical staff of the bank can attain only few customers at a time. Suppose 15-20 जन आए हैं तो एक ही टाइम पे 15-20 जन को वो ध्यान नहीं दे सकते हैं. But in online banking, the customer do not have to stand in queue to carry out their transaction. सीधा आपको तो घर पे बैठ के आपका ट्रांजेक्शन ही करना है. You don't have to wait in queue. So customer service is you can say that very slow in traditional banking, while it is very fast and rapid in the internet and core banking. Next is contact. Customers can have face-to-face contact in traditional banking, while customer in traditional banking as you have to go physically. तो आप वहाँ पे कस्टमर आप हो तो आपको वहाँ पे फेस टू फेस आप कांटेक्ट कर सकते हो टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक. बट इन इंटरनेट बैंकिंग एज यू आर नॉट विजिटिंग पर्सनली बैंक ब्रांच, सो यू कैन से दैट you don't have personal contact over there. So here today we are concluding with the meaning of core banking. Core banking, that is with a single server data, all the transactions are updated and accessible regularly, and it reaches to the customer in real time, as well as the customers can get the freedom of their transaction. Then we have learned the difference of traditional and internet banking. In that we have learned the point: presence, time, accessibility, security, finance control, expensive, cost, customer service and contact. So in the next video we will go with the next question. So till then, stay tuned. Goodbye.